Hi everyone. So this side Sarang Thada, your new mentor. Basically, I'm doing stock market since 2020 after 21, and it's been a 4 years experience that I have done till yet. And in the starting, everybody knows that how stock market actually works, and people goes in loss. Then they check their psychology, then they check the facts and figures that how it could be done better, and after that. Today's the time has come that finally I can share my strategy with you all because I am also profitable in that, and there is no short guarantee that if I am profitable that you can be short in that strategy. It's profitable for you as well, but there's a hard work only. If you do a good hard work on your psychology, on your training, on your strategy, then you can also easily achieve the same criteria, the same PNL, the same things from this market, because the market requires a good hard work, good energy from your mind. Understanding the stock market, option buying. What I'm trying to teach you, option buying. Option buying is a very low capital game जो छोटे पैसे से हम कर सकते हैं. So I personally suggest that it's about छोटा पैसा for me is like 1 लाख. बाकी तो कोई उसका गिनती नहीं है, आप कितना भी यूज़ करिए, बट आप बहुत ज़्यादा पैसे से भी ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू रिस्की. इट्स अ जीरो सम गेम. आपका प्रीमियम को एक दिन जीरो होना है या फिर वो आपकी रेंज में नहीं होगा तो उस पर ठीठा टिके हो जाएगा. तो ये दो चीज़ें होती है जो हम आगे समझेंगे कैसे होती है, क्या होती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज, स्टॉक मार्केट ऑप्शन बाइंग. What is the stock market? A place where people buy and sell shares of company. As we all know, why stock market has been created. It's created because uh, the physical things cannot be invested by many people, but there's a kind of thing which we can say that's security and the shares which people can buy and sell shares of company. That's the stock market. The company is listed in the stock market and people are buying and selling their shares with each other capital firms, so they are making profit as per their analysis. When you buy a share, you own a small part of a company. Obviously, if you are buying something from company, then you are getting or you are owning a small part of that. Share prices go up or down based on company performance and market trends. दूसरा उनकी performance which is, we can say that the quarterly results, yearly results, and how maybe say कि चलो एशियन पेंट जब भी दिवाली का सीज़न आता है इंडिया में तो उनकी सेल्स अप हो जाती है, तो उस क्वार्टर पे उस कंपनी का फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, द रिजल्ट्स आर इंक्रीजिंग, द परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इट मीन्स दैट द कंपनी विल मेक अ गुड चार्ट वैल्यूशंस. तो हम चार्ट वैल्यूशंस पे, लेकिन चार्ट वैल्यूशंस पे क्या होता है कि उस पर बड़े इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ सबको दिख रही है वो आपके हिसाब से नहीं करेंगे, या तो वो कर चुके होंगे या फिर जब आप थक चुके होंगे तब वो उस चार्ट को चलाएंगे. तो उसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है कि ये चीज़ होने तो वाली है बट ये होगी कैसे, दैट आई हैव टू कैप्चर. दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम एक्चुअली विन कर सकते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो स्कोप टू विन इन दिस एरिया बिकॉज दिस पीपल्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट. व्हाट इज़ ऑप्शन बाइंग? ऑप्शन बाइंग जो मैं पर्सनली स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ या मैं सिखाने वाला हूँ, तो ऑप्शन बाइंग मीन्स पेइंग अ स्मॉल अमाउंट to buy the right or to buy a sale at a fixed price. मतलब if I'm saying that this is a nifty which is running at 2400, so if I am assuming as my analysis that the nifty will go up from here, then what I will do, either I buy in the money call, either I buy at the money call, but out the money मैं नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे ठीठा टिके बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज वो रेंज से बाहर है. तो अगर मैं 24,500 की कॉल ख़रीदूँगा बिकॉज मुझे लग रहा है वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली मैं एक प्रीमियम पे कर रहा हूँ और मैं चार्ट पे उसको ऐसा एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा कि मेरे हाथ में एक स्टॉप लॉस भी रहे. मतलब मैं अपनी रिस्क पहले से लेके चलूँ मेरे दिमाग में. इफ़ आई एम बाइंग समथिंग और 1 लाख, दैट हाउ मच आई कैन बियर अ रिस्क. अगर मैं 1,20,30,000 रुपये कमाने आया हूँ तो मैं देने कितने आया हूँ. अगर मैं देने आया हूँ तो मैं कमा के जाऊँगा, ये गारंटेड है. बट उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा. ऑप्शन बाइंग में आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हो जो आपके पास लंबे टाइम तक रहेगा. वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक टाइम तक सीमित होता है, बेसिकली 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, वीकली. तो आप उतना ही उसको बाय एंड होल्ड कर सकते हो. रेस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट को ज़ीरो होना है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होना है, दैट इज़ ऑप्शन बाइंग.
दो टाइप के ऑप्शन बाइंग होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। लोअर कॉस्ट कम लगती है बिकॉज हमारा जो इंडियन मार्केट है वो सेलिंग ड्राइव इन इंडियन मार्केट है, ये हमेशा सेल होता आया है, इसको सेलिंग पर्पस भी डिज़ाइन किया है और सेलिंग में हम बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में हम कम कैपिटल यूज़ से भी खरीद सकते हैं ऑप्शन बाइंग को, तो इसलिए हमारे पास रिस्क भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एट द एंड दैट प्रीमियम हैज़ टू गो ज़ीरो, बट ओनली द स्मार्टेस्ट पीपल्स वर्क कैन ऑप्शन बाइंग एंड मेक अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम अगेंस्ट द सेलर्स। सो बेसिकली हमें सेलर्स का पैसा अपने पास लाना है, बट कैन गिव हाई रिटर्न्स ऑल्सो, इसलिए इसमें हाईएस्ट रिटर्न्स भी रहते हैं, नो डाउट। रिस्क ऑफ ऑप्शन बाइंग, यस 100% लॉस पॉसिबल। क्यों है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिकॉज मार्केट अगर आपके फेवर में नहीं गया, मार्केट में एंटायर प्रीमियम लॉस्ट हो जाएगा। सो इसलिए हमें इसमें बहुत टाइट स्टॉप लॉस या तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए या फिर चार्ट पे लगा हुआ रहना चाहिए, बिकॉज दैट प्रीमियम कैन बी लॉस्ट एनी टाइम, क्योंकि वो जितना अच्छा चलने की गारंटी रखता है उतना अच्छा ही वो लूज़ करने की गारंटी भी रखता है। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली द ऑप्शन बाइंग, और उसकी रिस्क यही है। टाइम डिके इसमें होगा, ऑप्शन लूज वैल्यू एज द नियर एक्सपायरी इवन इफ द स्टॉक डजंट मूव। सो सपोज व्हाट इज़ टाइम डिके? टाइम डिके इज समथिंग लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हुआ है आज, है ना, थर्सडे फ्राइडे को, ठीक है, 1 महीने इसकी लिमिट है, तो वो 1 महीना वो थीटा डिके होने के लिए ही रिलीज़ हुआ है, टाइम डिके होने के लिए रिलीज़ हुआ है। वो जितना नियर बाय एक्सपायरी जाएगा उसकी वैल्यूशन कम हो जाएगी, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस that where the sailors are selling the contract and where we as a buyer have to buy this contract. That's all we have to understand in this strategy, then only we can make money from it. Low success rate because बहुत accurate डायरेक्शन आपको पकड़ना होता है, बहुत accurate टाइमिंग और बहुत accurate स्पीड आपकी होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग में। नो ओनरशिप, यू डोंट ओन द स्टॉक, ओनली द राइट टू बाय सेल इट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। High volatile, prices can change quickly due to market news or sentiment. So what sometimes it happens like हम 4 जून 2024 का देख सकते हैं when the BJP governments come. So market was already very upside and it was very sure to the pro traders that the market will fall next, because जब सब कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा तब मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता है, और जब सब कह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तब कभी मार्केट नहीं गिरता है। दैट्स द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ मार्केट एंड द साइकोलॉजी, बिकॉज हमारी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बट जो पोजीशन जैसी बनती है वो बड़े प्लेयर्स की नॉलेज में रहती है। तो अब उस दिन आप देखोगे 4000 पॉइंट निफ्टी डाउन साइड मूव किया है, एंड इट मीन्स जो ऑप्शन बायर होगा उस दिन, मतलब उन्होंने 1 साल का पैसा एक ही दिन में बना दिया, बट उस मेंटलिटी, उस साइकोलॉजिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इनफ स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मार्केट को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक दैट सम अमाउंट ऑफ मनी। अदरवाइज इट्स पॉसिबल दैट यू कैन मेक अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मार्केट, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दैट। हाउ टू ट्रेड सिंपली, मतलब हाउ टू ट्रेड सिंपली, लर्न बेसिक्स, चीज़ों को समझो, चार्ट को समझना सीखो कि चार्ट कहाँ से क्यों कब कहाँ कैसे मूव कर रहा है। जो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक, विच इज़ माय स्ट्रेटेजी, ऑर्डर ब्लॉक प्लस EMA। तो मैं कैसे चार्ट्स को देखता हूँ, मैं कैसे प्रीमियम्स को ट्रेड करता हूँ, दैट आई विल टेल यू। मार्केट ट्रेंड्स, मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ गुड नॉलेज अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर, देन some way you are losing your interest, because market structure is very important. मार्केट डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, मार्केट कुछ महीने से साइडवेज है या क्या चल रहा है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप मत करो ऐसे रैंडम ट्रेड, आपको कुछ नहीं हो सकता। डू रिसर्च, चीज़ों को देखना समझना, टेक्निकल चार्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट स्मॉल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमेशा। when you are trying, when you are examining the market, when you are just saying यार मुझे किसी ने बताया, मुझे ये करना है, मेरे को समझना है, सीखना है क्या होता है, कौन पैसे कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, या एवरीबडी नोज दैट पैसे होते हैं यहाँ पे, पैसे कमाते हैं लोग, बट उतना आसान भी नहीं है कि सब कमा रहे तो तुम भी कमा लोगे। ये कुछ सालों की मेहनत होती है, उसके बाद डेफिनेटली आपके हाथ में एक स्किल्स आ जाती है, माइंड में एक स्किल आ जाती है, तो आप पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हो।
So basically, when you are experimenting in the market, you must start with a small capital. और I would suggest कि आप पेपर ट्रेडिंग करो सब कुछ बेसिक्स क्लियर होने के बाद. So that's the another way कैसे हम कर सकते हैं. टाइम योर ट्रेड, बाय लो सेल हाई, ये चलो सीखने के बाद का है, अभी आप नहीं कर सकते. Control emotions, it's a very big part, very unusual thing in market, because in my starting days it usually happens to me also. Still we are the humans, अभी भी होती हैं, but करते 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 आपका माइंड साइकोलॉजी डेवलप हो जाता है, माइंड सेट डेवलप हो जाता है, तो आप थोड़े स्मार्ट बन जाते हो कि हाँ मुझे कैसे चीज़ें कंट्रोल करनी है. मुझे ज़्यादा कुछ अनयूजुअल लगता है तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ. ऐसा माओ आई कंट्रोल माई इमोशंस ऑन द ट्रेड्स. सो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन यू टेक ट्रेड एंड लॉस में चले गई, तो जब आप बहुत नए नए हो तो आप उसको ट्रेडिंग की जैसे नहीं ले रहे हो, या जस्ट मेकिंग इट लाइक अ सट्टा. आप रिवेंज ट्रेडिंग कर दोगे, आप कुछ और कर दोगे, आप फटाफट खरीदोगे बेचोगे, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, या आपका कोई प्लान नहीं है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा तो मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हंट करने आएगा तो मैं मतलब यू हैव जीरो प्लान इन योर स्ट्रेटजी, यू हैव जीरो माइंड सेट, यू आर जस्ट डूइंग ट्रेडिंग विथ योर इमोशंस कि खरीद लेता हूँ बेच लेता हूँ, खरीद लेता हूँ बेच लेता हूँ, कभी प्रॉफिट्स हो जाएगा कभी लॉस हो जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रेडिंग, दैट्स प्योरली अ गैम्बलिंग पर्पस, बिकॉज इफ यू डोंट हैव प्लान यू आर जस्ट डूइंग अ गैम्बलिंग इन द मार्केट. And if you have a plan, if you have a mindset, if you have a good control on your emotions, then I can say you are doing a business in market, because market is simply a business. It's a return game, and people come here to make their money returns more than FD, more than everything. Option buying in index. So finally हम option buying in index के बारे में बात करते हैं. Index option are based on market indexes like Nifty, Bank Nifty, not individual stocks. इंडेक्स बाइंग क्या होता है कि वही जो मैंने बताया आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी को अगर हमने ख़रीदना है और बेचना है तो हम या तो फ्यूचर्स के साथ उसको ख़रीद के हैच करके खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, या फिर उसके कॉल और पुट को ट्रेड कर सकते हैं हमारे एनालिसिस बेसिस पे. सो यू बाय कॉल ऑप्शंस इफ़ यू थिंक द इंडेक्स विल गो अप, यू बाय पुट ऑप्शन इफ़ यू थिंक द इंडेक्स विल गो डाउन. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टिल नाउ. लोअर इन्वेस्टमेंट बट हायर रिस्क, एंटायर प्रीमियम कैन बी लॉस्ट. कि इन्वेस्टमेंट कम है बट रिस्क बहुत ज़्यादा है. अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं है, तो आप इस गेम में मारे जाओगे. यूज़ फॉर क्विक प्रॉफिट बट नीड प्रॉपर टाइमिंग एंड स्ट्रेटजी. हाँ, और आप अगर प्रॉफिट्स कमाने आए हो तो आपको बहुत स्मार्ट, बहुत सजग, बहुत टाइमिंग के साथ आना है, बहुत टाइमिंग के साथ जाना है. अच्छा वॉलेटिलिटी सेशन ढूंढ के अच्छी अपनी स्ट्रेटजी पे कमांड बना के थ्रू पेपर ट्रेडिंग, थ्रू स्मॉल अमाउंट्स ग्रो करके उसके बाद आप एक अच्छा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो, जहाँ आप बोल सकते हो कि चलो मैं इसका कुछ रिटर्न मार्केट से निकालूंगा. दैट इज़ ऑल मार्केट. अब हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो अब मैं प्रेजेंटेशन प्लस मेरा चार्ट में आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे करेंगे. मार्क की जोन्स, आई प्लॉट ऑर्डर ब्लॉक्स एंड मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस टू फाइंड स्ट्रॉन्ग प्राइस एरिया. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं प्लॉट करूँगा ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, मार्क की जोन्स है ना. व्हाट आर द मार्क की जोन्स? चलो चार्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं. लेट्स कम टू द चार्ट. ये निफ्टी का चार्ट है. उसके अलावा मैंने एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कलर्ड एरिया लगा रखा है, लक्स एल्बो, विच इज़ अ एल्बो विच इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी. सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम वैसे भी देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, राइट. तो ये पूरा एरिया मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है अभी भी. यहाँ पे जब भी आएगा आई विल ट्राई टू मेक पुट साइड ट्रेड. गॉट इट. जब भी नीचे जाएगा तो हियर आई विल ट्राई टू मेक कॉल साइड ट्रेड. दिस इज़ व्हाट माय ऑर्डर ब्लॉक. इसके बीच में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा. ये वाला मेरे बाइंग एरिया हो गया, बाइंग एरिया हो गया, बाइंग एरिया हो गया. अब मैं कब ऊपर के लेवल पे कब बाइंग करूँगा ये भी मैं देख लेता हूँ. ये मेरा स्ट्रॉन्ग हाई है, मतलब यहाँ तक सेलर्स फुल एक्टिव है 25,115 तक. अब मैं बोलता हूँ मंडे को मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो गया और यहीं पे बेस बना रहा है, तो डेफिनेटली आप ये समझो कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा और मैं डेफिनेटली कॉल बाय करनी है मुझे. अब मैं इसको ट्रेड कैसे करूँगा, तो अगर ऊपर नीचे हमें बाय करना है, अब मैं EMA की हेल्प लेता हूँ इसमें.
ये मेरा EMA चार्ट्स है। अब लेट्स डू वन थिंग। ये है 23 मई का चार्ट ना, 9 तारीख का, 23 मई का 9 बजे की कैंडल है 15 मिनट की, ठीक है। हम इसको बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। 9:15 की कैंडल है, मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ है। मार्केट ऊपर होने के बाद अब मैं क्या देखूंगा, मैं प्रीमियम देख रहा हूँ। प्रीमियम ने जर्क मारा, प्रीमियम ऊपर आया, उसके बाद EMA पे सस्टेन किया है। EMA पे सस्टेन किया है तो या डेफिनेटली ये मेरा 920 जो EMA है, मैं यहाँ पे इसको उठा सकता हूँ। 50 EMA के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। मतलब मैं 125 का स्टॉप लॉस रखूँगा, मैं इसको ट्राई करूँगा मैं 150 155 पे उठाऊँ। तो उतनी रिस्क तो मेरे को लेके चलनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से ट्रेड बनाऊँगा 150 55 की, तो ये देखो ट्रेड हो रही यहीं पे 40 पॉइंट देगी एंड 40 पॉइंट्स इन निफ्टी इज़ लाइक यू आर मेकिंग अ मैसिव गेन, यू आर मेकिंग 30 to 40% इन प्रीमियम, बट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग इनफ इन योर स्ट्रेटजी। अब इस EMA चार्ट ने मुझे एक बार ट्रेड दी, सेकंड टाइम फिर EMA पे ट्रेड दी, यहाँ पे नॉट यहाँ पे, ये हमें किसी को नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला। बट ये जब सुपर बाइंग कैंडल आई EMA के ऊपर, उसके ऊपर वाली कैंडल हमारे लिए ट्रेड थी। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। अब इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, मैंने कॉल और पुट दोनों का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। ये हमारा EMA के ऊपर चल रहा है, ये हमारा EMA के नीचे चल रहा है। जब तक पुट EMA के नीचे चल रहा है, इट मीन्स पुट को कंटिन्यू सेलर सेल कर रहा है। देयर इज़ नो बाइंग इन पुट, द ओनली सेलर्स आर सेलिंग द पुट। इट मीन्स कि हमें बाइंग किस में करनी है, कॉल ऑप्शन में करनी है। और मार्केट हमारा क्या दिखा रहा है, सिर्फ कॉल साइड उस दिन दिखा रहा है। उसके बाद 11 बजे बाद साइडवेज हो गया, पूरे दिन साइडवेज रहा, दैट्स इट। तो हाउ दिस माई स्ट्रेटजी वर्क्स इन द मार्केट, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपको और ज़्यादा इसमें सीखना है, समझना है, यू कैन टेक माई कोर्स फ्रॉम, तो आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको कोर्स दे दूंगा। वहाँ पे हम कोर्स लाइव डिस्कस करेंगे, मैं आपको और लाइव सेशंस में भी सिखाऊंगा, तो हम वहाँ पे अच्छे से इसको सीख समझ सकते हैं। फिर हम क्राइटेरिया बेस पे डिस्कस कर सकते हैं कि अब क्या करना है। चलो हम वापस PPT पे आते हैं। यूज़ EMAs स्मार्टली, जो मैंने आपको बता दिया है कि मैं चार्ट देखने के बाद EMA पे कैसे ट्रेड लूँगा, जो मेरी की स्ट्रैटेजी है। ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के बाद EMA पे कैसे ट्रेड लूँगा। तो EMAs help me catch the trend and pick the best time to enter a trade. Perfect strike selection. Perfect strike selection for me if chart is running around 24,500, so मैं ATM ही उठाऊँगा, राइट। अगर इंडिया विक्स भी नॉर्मल है, इंडिया विक्स एक इंडेक्स होता है जो वॉलेटिलिटी बताता है मार्केट की, कि वॉलेटिलिटी कितनी है। अगर वॉलेटिलिटी बहुत कम है तो मैं इन द मनी उठा लूँगा। अगर वॉलेटिलिटी 15-16 के आसपास है तो मैं एट द मनी पे काम करूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं आउट द मनी कभी काम नहीं करूँगा, बिकॉज आउट द मनी में उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी कम मिलती है और वो मोस्टली सेल हुए हुए ऑप्शंस होते हैं। वो बहुत कभी कभी आप लक्की हो जाते हो, आपके लिए काम कर जाता है, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग ओवरऑल। उसके बाद मैं उस पर चेक करूँगा कि EMA वाइज मुझे वो वहाँ ट्रेड मिल रही है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बन रहा है चार्ट पे। तो ये सब मुझे देखना पड़ेगा, इससे साइकोलॉजी मुझे डेवलप करनी पड़ेगी, वैसे ही फिर मैं काम कर सकता हूँ। ट्रेड विद अ प्लान, क्लियर एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, नो गैस वर्क, नो ओनली स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इफ आई एंटर्ड हियर, लेट्स डू लॉन्ग पोजीशन में यहाँ बना रहा हूँ इस चार्ट पे, तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँगा, मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रखूँगा, 123 रुपये ना। मैं बिल्कुल इसको EMA के पास उठाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ इसको उठाई 152, मैंने चलो डाला है 155, मैं इसको क्लोज करूँगा अंदर 200 EMA के आसपास। वो अपने आप हमें मिल जाएगा कहाँ तक जाना है, क्योंकि वो EMA उस टाइम पे करंटली वर्क करते हैं। तो ये चलो 50 पॉइंट दे रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ कि नहीं 50 पॉइंट आप कैप्चर कराओगे। अगर आपने एक बूम भी इसका कैप्चर किया, 1 लाख की भी ट्रेड आपने यहाँ पे डाली, तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट 20 to 30% इन दिस ट्रेड, राइट। तो ये होती परफेक्ट एंट्री एग्जिट। लेकिन यहीं पे अगर ये रिवर्स हो जाता है आपका, तो 150 से लेके 120, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब आपकी 1:1 की ट्रेड हुई, 1:1 की आपकी ट्रेड हुई, तो आपको वो कैप्चर करनी पड़ेगी कि उतना ही देना, उतना ही हम देने आए, उतना ही हम लेने आए। बट अगर हमारी स्ट्रैटेजी बहुत मजबूत है, तो जब ये EMA नीचे से जाएगा तो हमें बहुत बार झटके मारेगा ऊपर की तरफ, तो
करता हूँ, अगर हमें जैसे मेरा माइंडसेट है, मुझे पता पड़ जाता है कि यार ये प्रीमियम अब काम नहीं करने वाला, तो मैं ईएमआई के आसपास ही इसमें एग्जिट कर लेता हूँ विथ वेरी मिनिमम लॉस। ये तो होती है परफेक्ट एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस प्लान, जो मैं एक्चुअली यूज़ करता हूँ। और वो टाइम बाय टाइम डेवलप हो जाती है, तो ऐसे कोई बहुत वरी वाली बात नहीं है, चीज़ें स्मार्ट हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि हमें काम कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज़ माई लास्ट पेज ऑफ पीपीटी एंड आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। दिस इज़ कंप्लीट स्ट्रेटजी, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वेबिनार ऑन प्लेटफॉर्म, बट इफ़ यू रियली वांट टू परचेज माई कोर्स यू कैन, वहाँ पे हम बहुत डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ 12 to 15 सेशंस लाइव रखेंगे, जहाँ हम लाइव मार्केट में साथ में बैठ के ट्रेड करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे दैट हाउ एक्चुअली ट्रेडिंग हैपन विद ऑप्शन बाइंग विद स्मॉल कैपिटल, हाउ यू कैन मेक बिगर प्रॉफिट्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब बना लेंगे, यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी शार्प, आपको सही में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट ईजी, जितना दिखता है उतना ईजी होता नहीं है, बट उतना हार्ड भी नहीं है। सो इफ़ यू डू राइट वर्क इन द राइट डायरेक्शन यू विल डेफिनेटली मेक मनी, एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर अप टू यू, जो मैं अभी तक बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइज।